A very good morning, class 10th science. Today we are going to start our second chapter, that is how do organisms reproduce. And we are also missing you all. And I hope you all are also missing us in your school days. Hope soon we shall meet together and will study in our classes. But okay, till we are not able to get together physically in school, we need to continue online. So our chapter number 1 is finished, that is life processes. That was a very big chapter, and many new things were introduced to you first time, and you need to focus on them. I request you to continuously revise them, and if you are facing any problem you can ask. Okay. According to the syllabus, control and coordination chapter, that is temporarily removed for this year, so we have skipped it. And after control and coordination in your NCERT book, at page number 127, how do organisms reproduce, it is chapter number 8. So it is interesting as well as again new for you. Some concept that you studied in class 9th, they shall be used in this chapter. Mainly cell division. In class 9th we studied the types of cell division, that is meiosis and mitosis. If you have not seen, we'll explain it. So today first we will introduce the chapter, we'll see the basic things which are required for studying this chapter, then we will move forward. Okay, okay. So let's continue. Okay, so we are now in the core part of this chapter. The chapter already I introduced you, the name of chapter, how do organisms reproduce. We will try to introduce the chapter today. You know, organisms means living things, right? And this reproduce, if I reproduce, तो प्रोड्यूस का मतलब तो पता है आपको, मतलब किसी चीज़ का प्रोडक्शन हो गया, दैट इज़ प्रोड्यूस्ड. एंड वॉट एवर थिंग इज़ प्रोड्यूस्ड, इफ इट इज़ प्रोड्यूसिंग itself again, then it is called as reproduce. For human for example, first human was produced, and then first human produces the next generation, so it is what? Reproduce. So when any living organisms produces its own kind again, then it is called as reproduce. Meaning produce again, reproduce of same kind, अपने ही जैसा एक और बनाना, that is called as reproduction. ठीक है, okay, that is the general meaning of reproduction. Now question is that again you should ask, why to reproduce? In your book also it's given, why to reproduce, क्यों reproduce करने की क्या ज़रूरत है. अगर मैं क्वेश्चन पूछूं व्हाट इज़ द नीड टू ब्रीथ, जैसे ये भी लाइफ प्रोसेसेस है ना, रिप्रोडक्शन इज़ अ काइंड ऑफ लाइफ प्रोसेस, ये भी लाइफ का एक प्रोसेस है, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी. दैट्स वाई वी कैन आस्क द क्वेश्चन व्हाई टू रिप्रोड्यूस, बिकॉज इफ़ वी आर टेकिंग न्यूट्रिशन इट इज़ नेसेसरी फॉर एनर्जी. इफ़ वी आर नॉट सर्कुलेटिंग, हार्ट इज़ नेसेसरी, वी कांट सर्वाइव. ब्रीदिंग इज़ नेसेसरी, वी कांट सर्वाइव. बट what is the need of reproduction? Why do organisms reproduce? It is how it's given, but I am asking why do organisms reproduce, क्यों reproduce करते हैं. हो सकता है आपके बहुत सारे आंसर्स हों, but before giving answers you let us see again some facts about the reproduction. If any organism is reproducing its own kind, then it wastes its a lot of energy. आपको खुद पता है, देखो अगर बेबी का प्रोडक्शन भी मदर करती है तो उसको 9 मंथ तक उसको कैरी करना, फूड का ध्यान रखना और अपनी बॉडी की बहुत सारी एनर्जी बेबी के अंदर स्टोर करना, सो इट्स अ काइंड ऑफ वेस्टेज ऑफ एनर्जी.
A lot of energy and time and efforts are wasted to produce same kind of organisms. तो एनर्जी तो बचाना चाहिए, वाई एनर्जी इज़ वेस्टेड। और अगर कोई ऐसा एनिमल जो बच्चे पैदा नहीं करता, मान लो लाइफ टाइम में रिप्रोड्यूस नहीं करता, तो क्या वो सर्वाइव नहीं करता? डू इट फेसेस एनी प्रॉब्लम? नो, इट इज़ नॉट फेसिंग एनी प्रॉब्लम। दैट मीन्स इट इज़ नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द लाइफ। Reproduction is not an essential part of life. मतलब ऐसा नहीं कि अगर रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो मर जाएंगे या वो एनिमल्स की डेथ हो जाएगी, नो। बट इतने एनर्जी वेस्ट होने के बाद भी और इसके एसेंशियल ना होने के बाद भी वाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस? ओके, तो बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, बट द मेन आंसर इज to continue the generation। क्योंकि अगर मान लो एक बर्ड है, अब वो प्रोड्यूस नहीं करता तो वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हमें लाइफ में कभी दूसरी बार वो बर्ड देखने को मिलेगा ही नहीं। ह्यूमन का भी अगर ऐसे ही हो, इफ़ दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग देन एट द टाइम विल कम द ऑल ह्यूमन्स आर disappeared, all plants are disappeared and all. So we are able to notice many kinds of plant and many plants of same kind because of reproduction। मतलब हमें कई कैट दिखते हैं, नहीं तो एक ही कैट होता दुनिया में, कई टाइगर्स दिखते हैं, अदरवाइज देयर माइट बी अ वन टाइगर। सो द सेम काइंड ऑफ एनिमल्स आर मोर इन नंबर because of reproduction process। So they are creating their own copy, their own kind of living organisms। it is called as reproduction। ठीक है, ओके। नाउ लेट्स सी हमको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। आउटलाइन अगर देखें हमें, आउटलाइन तो एक तो ये हमने इंट्रोड्यूस कर लिया चैप्टर को कि क्या क्या पढ़ना है इसमें। देन मेन थ्री थिंग्स वी शैल स्टडी। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, रिप्रोडक्शन इन माइक्रोब्स। हमें ये पढ़ना है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, हाउ डू दे रिप्रोड्यूस। देन रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, वी नीड टू सी हाउ प्लांट्स रिप्रोड्यूसेस, नया प्लांट कैसे बनता है। एंड रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, स्पेशली किसका पढ़ना है हमको, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये जो चैप्टर है ये कम्प्लीटली आपके 12th में रिपीट होगा, तो जो बेस बनेगा 10th में, द सेम बेस विल बी यूज फॉर क्लास 12th। सो आई रिक्वेस्ट यू टू फोकस। तो ये तो किसके किसके बारे में पढ़ेंगे, ये हो गया आउटलाइन। एंड देन इन सब के बारे में, आई दैट इज प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वी हैव टू स्टडी मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के जनरली दो मेथड्स हैं, ए सेक्सुअल मेथड एंड सेकेंड इज सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये दोनों पढ़ना है हमको प्लांट, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। बट मेन थिंग वी हैव टू स्टडी अबाउट द प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये दो चीज़ें ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है, ओके। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ गिवन इन योर टेक्स्ट बुक itself, that do organisms create exact copy of themselves? Do organisms create exact copy of themselves? The answer may be yes or it may be no। मतलब कोई भी एनिमल या प्लांट क्या अपनी एग्जैक्ट कॉपी प्रोड्यूस करता है? हो सकता है कुछ लोग यस बोल रहे हो सकता है कुछ लोग नो बोल रहे हो। सो नो इज़ ऑल्सो ट्रू एंड यस इज़ ऑल्सो ट्रू।
ऐसा कैसे पॉसिबल है कि नो भी हो और यस भी हो? बोथ आर ट्रू। यस भी सही है और नो भी सही है। ओके, देखते हैं कैसे। ठीक है, बट इसका आंसर पढ़ने से पहले हम थोड़ा बेसिक्स को चेक करेंगे अपने, जो हमें ज़रूरत पड़ेगी उसको हम ठीक करेंगे पहले। Okay, in basic, we need to study or we need to confirm our previous knowledge. Cell you know very well, right? Cell membrane, it is nucleus, and inside the nucleus some cross structures are present. Those are chromosomes. And chromosomes, what is present? DNA, deoxyribonucleic acid. Deoxyribonucleic acid, DNA. Deoxyribonucleic acid. Again I am saying DNA. What is DNA? It is genetic material. और क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? जीन्स। और जीन्स क्या डिसाइड करते हैं? हमारे करेक्टर्स, वेदर मीन्स our eyes color, shape of nose, head, skin color, and everything, our voice and everything is means controlled by the genes. And the genes, what the genes are? DNA, the part of DNA is genes. ठीक है, now you know cell divides to form new cells. For example, it is one cell, its nucleus. So first of all, cell grow its size, थोड़ी सी बड़ी होती है, and then it divides. Grow, then divide. So this was which cell? Old cells, and these are what? New cells. मतलब हम कह सकते हैं कि new cells arise from old cell. This is a cell theory also in class 9th we studied. जो नए सेल हैं वो हमेशा पुराने सेल से बनते हैं। लेकिन आप ये देखो कि इसी एक सेल से दो सेल बने हैं ना, उनका साइज भी इसके बराबर है, शेप भी वैसा ही है। इट हैड ओनली वन न्यूक्लियस, बट ये दो जो न्यू बने इनमें एक एक और न्यूक्लियस है, मतलब दो न्यूक्लियस हैं, और दोनों न्यूक्लियस का जो साइज़ है इस न्यूक्लियस के बराबर है। तो कैसे कैसे पॉसिबल है? तो ऐसे पॉसिबल है कि सेल के अंदर जो भी मटेरियल है, जैसे यहाँ आपने पढ़ा है, क्या क्या मटेरियल है बता सकते हैं? शॉर्ट में लिख रहा हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, अगर वैक्यूल है, प्लांट है तो प्लास्टिड है। दीज ऑल आर प्रेजेंट फॉर वन सेल। लेकिन जब दूसरी सेल बनाना होगा तो ये ग्रो हो रहा है ना, तो ऑल द थिंग्स विच आर प्रेजेंट, अब न्यूक्लियस भी है इसमें, न्यूक्लियस, तो ऑल द थिंग्स दे बिकम डबल, है ना। तब ना पॉसिबल है कि दोनों ही सेल में जितना भी मटेरियल सब इक्वल इक्वल में जाए, तो डबल होता है। तो डबल होगा तो क्या होगा? कैसे डबल हो जाएगा? जैसे हमको पेपर का एक दूसरा पेपर बनाना होता है तो क्या करते हैं? फोटो कॉपी करते हैं ना, फोटो कॉपी करते हैं। ऐसे ही इन सारी चीज़ों की फ़ोटो कॉपी होती है या कॉपी होती है, सीधे कहेंगे इसे कहते हैं डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। सेल के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सब डुप्लीकेट होती हैं। इसका मतलब
ये गोल्जी बॉडी भी डुप्लीकेट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी डुप्लीकेट होगा, ये न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल भरा है मतलब ये क्रोमोसोम्स ये भी डुप्लीकेट होंगे, मतलब सबकी दो दो कॉपी बनेगी। और जब दो कॉपी बन जाएंगी तो वो फिर आपस में सेपरेट, दे विल बी सेपरेटेड एंड न्यू सेल्स विल बी फॉर्म्ड। तो अगर कॉपी बिल्कुल एग्जैक्टली हुई मान लो, ठीक है, तो ये दोनों सेल सेम होंगे इसके जैसे, दिस सेल विल आइडेंटिकल टू दिस सेल इफ़ ये जो डुप्लीकेशन बिल्कुल सही हुआ तो। लेकिन अगर कॉपी ठीक से नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, इनमें, इन दोनों में और इसमें या इन आपस में भी चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। सो दिस यू ट्राई टू फोकस वेरी वेल। we will discuss it again। अब ये आपको पता है रिप्रोडक्शन के लिए नई सेल्स बनती हैं और नई सेल्स बनाने के लिए पुरानी सेल का यूज़ होता है, एंड ओल्ड सेल गिविंग राइज टू न्यू सेल्स, एंड न्यू सेल्स हैव सेम थिंग विच इज़ प्रेजेंट इन ओल्ड सेल्स। तो जो ओल्ड सेल में है वो नई सेल में भेजने के लिए अगर दो बनाने हैं तो उसको डुप्लीकेट होना चाहिए, तो डुप्लीकेट होता है, डुप्लीकेट होने के बाद वो सेल्स में चला जाता है, ठीक, ओके। सो आई होप ये थोड़ा सा क्लियर होगा, है ना। अब जस्ट मूविंग फॉरवर्ड वन स्टेप अहेड, you know there are two kinds of organisms on the basis of number of cells they have। ये सब बेसिक्स में है, जब ये याद आएगा मतलब आपको कंफर्म होगा, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। काइंड्स ऑफ livings, so kinds of livings on the basis of number of cells present in their body, they may be unicellular or may be multicellular। तो फॉर एग्जांपल देखते हैं, बहुत कॉमन है, मान लो अमीबा है, ठीक है, एक न्यूक्लियस है, वैक्यूल्स हैं, स्यूडोपोडिया है, तो ये क्या है, इट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब ऑर्गेनिज्म मतलब कि एक पूरा ये बॉडी भी है, जब ऑर्गेनिज्म बोल रहे हैं तो इट्स अ बॉडी ना, इट्स अ बॉडी। अमीबा बस यही है, एक सेल ही है उसके पास, और उसी सेल से वो मूवमेंट करता है, यूजिंग दिस सेल itself it is getting nutrition, respiration, excretion, circulation, everything is done inside one cell। so this body is equals to cell या cell equals to body, चाहे आप इसको वन सेल बोलें या वन बॉडी बोलें, ओके, ठीक। so sometimes the cell is equals to body, but in case of multicellular, cell is not equals to body। why? because many cells get together to form tissues, then tissues get together to form organs get together to form organ system, and then organ system combine to form the body। so एक सेल को आप बॉडी नहीं बोल सकते, बट इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल इक्वल्स टू बॉडी, ठीक है, ओके। नाउ अब इनका आंसर देखते हैं हम, इसका आंसर यस या नो दोनों ट्रू कैसे है ना, कि डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्व्स, सो इट मे बी यस और इट मे बी नो। तो देखते हैं कैसे, तो अमीबा से शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल ये अमीबा है और मैं बाकी चीज़ें कुछ नहीं बना रहा, सिर्फ इसका क्या बना रहा हूँ, डीएनए या क्रोमोसोम। हम मान लेते हैं इसके पास कितने क्रोमोसोम्स हैं, 4, ठीक है, इसके पास कितने क्रोमोसोम्स हैं, 4, राइट। अब अगर इसको क्या करना है, एक नया अमीबा बनाना है, तो सबसे पहले क्या करेगा, इट विल इंक्रीज इट्स साइज, थोड़ा खाना खाएगा, मोटा ताज़ा होगा, इसके अंदर जो भी चीज़ें होंगी सबको क्या करेगा, डबल करेगा,
तो हम सिर्फ पहले डीएनए की बात करते हैं। तो डीएनए डबल देखते हैं कैसे होगा। देखो ये तो पहले से था ही, है ना। अब इसी की एक कॉपी और बन गई सबकी, ब्लू से शो किया मैंने। डुप्लीकेशन हो गया, ठीक है। अब अगर मशीन सही है तो हम क्या कह सकते हैं, ये जो रेड कलर से जो क्रोमोसोम है इसकी कॉपी हो करके क्या बना है, ब्लू कलर से जिसको हमने शो किया है। तो हम कह सकते हैं ना कि रेड कलर का जो क्रोमोसोम है उसका जो डीएनए है वो एग्जैक्टली किसके जैसा है, जो ब्लू कलर का नया कॉपी बना है, ठीक है। इट इज़ कॉपी, इट इज़ ओरिजिनल। सो वी कैन से ओरिजिनल इक्वल्स टू कॉपी और कॉपी इक्वल्स टू ओरिजिनल। ओके, अब क्या होगा, ये 20 से कटेगा, है ना, ठीक है। इट इज नाउ डिवीजन। नाउ डिवीजन, ठीक है। तो ये 2 अमीबा बन जाएंगे नए, ठीक। अब इनका जरा क्रोमोसोम्स का देखते हैं। तो हाफ इसमें चला जाएगा, हाफ इसमें, तो बराबर हो गया। ये कॉपीड वाला पार्ट है। तो कलर तो अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन हमने यहाँ क्या हाइपोथेसिस ली हुई है कि रेड कलर क्रोमोसोम इक्वल्स टू ब्लू कलर क्रोमोसोम। तो ये कॉपी होके दोनों सेल में चले गए, लेकिन बट कॉपी वाज एग्जैक्ट। सो बोथ अमीबा, दिस इज amoeba number A and this is amoeba number B. So what we can say, both are identical or exact copy. exact copy मतलब अब ये सेल तो ही डिवाइड हो गई है, बट यहाँ पास में ही कंपेयर करेंगे। सो दे आर नाउ आइडेंटिकल बिकॉज कॉपी वॉज एग्जैक्ट। तो दोनों के जो डीएनए है वो सेम है ना, ठीक है। ओके, सो दिस वाज वन मेथड कि दिस इज बॉडी ऑल्सो एंड सेल ऑल्सो। अगेन अगेन आई एम सेइंग दिस इज सेल एज वेल एज बॉडी, 2 अमीबास आर फॉर्म्ड एंड दे आर यूनिसेलुलर, ठीक है। ओके, और क्या हुआ था, देयर डीएनए वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। कुछ एपरेटस हैं, मतलब कुछ टूल्स हैं जिसके थ्रू ये सेल भी से कट जाती है। एंड आफ्टर कटिंग 2 cells और 2 organisms आर फॉर्म्ड। क्लियर, ओके। तो यहाँ पर दोनों आइडेंटिकल हैं, बट कब आइडेंटिकल हैं, प्रोवाइडेड दैट द कॉपी ऑफ ओरिजिनल क्रोमोसोम शुड बी सिमिलर टू द ओरिजिनल वन। दोनों सेम होंगे तो हम कहेंगे कि दोनों सेल सेम है, बट ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। 99.99% तो हो सकता है सिमिलर हो, बट मे बी 0.01% क्या हो सकता है, डिफरेंट। इतना डिफरेंट, जन मैक्सिमम तो सिमिलरिटी आती है, बट 1% ये 0.01% डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस भी बहुत होता है इवोल्यूशन के लिए, मतलब नया ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए। बट इस केस में बहुत ही स्लो और बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है कि एग्जैक्ट कॉपी बने। इस तरह की मेथड को हम एसेक्सुअल बोलते हैं। हम अभी नाम नहीं लेंगे, आगे हम देखेंगे इसको। लेट्स सी नाउ सेकेंड पॉसिबिलिटी, यू सी प्लीज।
सेकेंड पॉसिबिलिटी इज दैट फॉर एग्जाम्पल स्पर्म है किसी बॉडी में, ये क्लास 8 में ही पढ़ा है आपने, स्पर्म में एग्स है और सपोज एक एग है उसमें भी एग्स है। इन केस ऑफ ह्यूमन पूरी बॉडी कट करके दो पार्ट नहीं बनाती, बिकॉज हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और हमारी बॉडी कट करके फिर से बॉडी नहीं बन सकती, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं हमारी बॉडी में जो रीजनरेट नहीं हो सकते, फिर से नहीं बन सकते अगर कट गए तो, जैसे नर्वस सिस्टम है। सो इन हायर ऑर्गेनिजम्स मीन्स हम इसकी किसकी बात कर रहे हैं, अब ये यूनिसेलुलर की बात थी, अब हम बात करेंगे किसकी, मल्टी सेलुलर की। तो इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स दे हैव स्पेशलाइज्ड सेल्स, कुछ स्पेशल काइंड की सेल्स हैं, वो दो सेल्स आपस में मिल करके नया ऑर्गेनिजम्स बना देते हैं, ठीक है। सो व्हेन दे मीट टुगेदर स्पर्म एंड एग, so both are fused and अच्छा थोड़ा अलग अलग कलर शो कर देता हूँ ना, ये ब्लू है मान लो, ये रेड है, नाउ दिस इज व्हाट, इसे आप क्लास 8 में पढ़ चुके हैं, इट इज़ कॉल्ड एज जाइगोट, ठीक है। अब ये जाइगोट ये किसका था, ये आया मेल से एंड दिस केम फ्रॉम फीमेल। तो मेल के पेरेंट्स कुछ और थे, फीमेल के पेरेंट्स कुछ और थे, फिर मेल के ग्रैंड पेरेंट्स कोई और थे, फीमेल के ग्रैंड पेरेंट्स कोई और थे। सो यू कांट से दैट the X chromosome which is present in female is similar to the X chromosome present in male, because this chromosome came from different family background and this chromosome came from different family background। तो जो हमने यहाँ पढ़ा है कि कॉपी होती है, तो कॉपी तो होता है, कॉपी होके ही आया होगा, बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कॉपीइंग ऑलरेडी आई टोल्ड 99.99% इज सिमिलर, तो 0.01% इज डिफरेंट, और ये तो बहुत सारी जनरेशन से डिफरेंट होते होते आया है, तो सो डेफिनेटली इट माइट बी डिफरेंट फ्रॉम दिस एक्स क्रोमोसोम, बट व्हेन दे बोथ गेट टुगेदर, तो जो एक कॉम्बिनेशन बनेगा वो तो इसके पेरेंट जैसा भी नहीं होगा, इसके पेरेंट जैसा भी नहीं होगा, दैट विल बी न्यू। तो ये हो गया न्यू, तो डिफरेंट, ये दोनों सही हैं। So do organisms create exact copy of themselves? No. In case of multicellular, because the sexual reproduction takes place and chromosomes from two different partners and two different family backgrounds are coming and new baby is formed, so no, they are not different, I mean same. But in case of this, when a single cell divide into टू सेल्स एंड ईच सेल इज इक्वल्स टू ऑर्गेनिज्म, मतलब वो सेल ही ऑर्गेनिज्म के बराबर है, देन दे विल बी आइडेंटिकल और सिमिलर। क्लियर, ठीक है। तो ये मेथड जो है इट इज सेक्सुअल मेथड एंड दिस मेथड इज एसेक्सुअल। ये भी पहले पढ़ चुके हैं, यहाँ देखिए दो पेरेंट्स, दो पार्टनर की जरूरत पड़ रही है, मेल पार्टनर एंड फीमेल पार्टनर, सो इट इज़ द मेन फीचर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड हियर अ सिंगल पेरेंट is sufficient and it is called as asexual reproduction. Okay my dear students, now I am concluding today's lecture. Our main objective for today was to clear the basics required for this chapter and to find out the outlines of this chapter and these two basics. Okay, ठीक है, okay, go through it and submit the notes. Thank you.